Good evening, everyone. Sunita ji, you may start. Okay, thank you, Sushmita. Very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the third webinar in the series of Himalaya Chintan by Himalaya Unnati Mission. I am honored to be a moderator for today's enlightening session. As you all know, today's webinar is titled Women Champions of the Himalaya. जी हाँ, आज की वेबिनार में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं हिमालय की ऊंचाइयों जैसे ऊंचे सपने देखने वाली और हिमालय की ताकत जैसा मनोबल लिए कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने हिमालय की जटिलताओं से गुजरते हुए स्वयं अपना रास्ता बनाया और न केवल हिमालय वासियों के लिए बल्कि हम सब के लिए मिसाल बन गई। हमारी पहली वक्ता होंगी इशिता खन्ना जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इकोस्फीयर। उनके बाद हम रूबरू होंगे पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र से आई श्रीमती तारा पांगती जी से, जो कि संस्थापक है पंचचूली हथकरघा महिला उत्थान औद्योगिक सहकारी समिति की। इसके बाद जानेंगे हिमालयन वॉलंटियर टूरिज्म की को फाउंडर महिमा मेहरा जी की रोचक यात्रा के बारे में, और अंत में सुनेंगे अंजू बहारी जी से हिमालय की सुदूर इलाकों के बच्चों और कैदियों के जीवन में उनके द्वारा लाई जा रही डिजिटल क्रांति की कहानियां। Each of our speakers embodies resilience, determination, and a commitment to make a positive impact for Himalayan communities. Today, we are gathered here to listen to their inspiring stories and celebrate their remarkable achievements. Question and answer from the audience are welcome throughout the session in the chat box and will be addressed in the end by our speakers. So without any further delay, ladies and gentlemen, let's all extend a virtual welcome to the She Heroes, the Sheroes of Himalaya. Our first speaker, Ms. Ishita Khanna, is the founder and director of Ecosphere, an award-winning social enterprise working in Spiti, Himachal Pradesh, on creating synergy between responsible travel and sustainable development. She is also the co-founder of Muse, an NGO that has been working in Spiti since 2002 on various community initiatives. Her experience of working at the grassroots and passion for the environment and mountains have been the driving force for Ecosphere and Muse, which enabled her to live her philosophy. She was voted as an MTV Youth Icon and has been featured in various magazines and articles as one of India's 50 leading social entrepreneurs. She has been awarded the Real Heroes Award by CNN IBN, a pathfinder in the Indian Responsible Travel Awards, and is also an Ashoka Fellow. This introduction hardly does justice to the work that she started at a very, very young age of 23. So let's hear from the woman herself about her remarkable journey. So Ishita, I would like to ask you, could you please share the story behind the inception of Ecosphere and Muse? What inspired you to embark on this journey? How it all began? We would all like to hear from you. Welcome, Ishita. Thanks, Sunita. Thank you, Anju, for having me on this, on this forum. It's, a great honor to be here. And I hope you can hear me. Yes, we properly. can. Yeah. It's been many years, 20 years ago, more than 20 years ago, that I started it. So it's quite a long story, but just to cut it short, I was a fresh graduate at that point in time, and I always had a passion for the mountains and the environment, and always wanted to do something in the hills. I'm from Dehradun originally, but now I almost call myself half Himachali because I've lived there for a good part of my life, and mostly in Spiti Valley. And so there was always this passion and adventure spirit and wanted to do something in the mountains and related to conservation and looking at how women livelihoods can be created, which can be linked up to kind of like a conservation and of the culture and the natural heritage. And that's what led me to kind of like life's journey took me towards Spiti, and that's how I landed up there somehow. It was a very remote area. Nobody knew about Spiti back then. Didn't even know that it was part of India. Now, of course, it's on the tourist map. So there's a lot of tourists coming into Spiti, but back then hardly anyone had heard about Spiti. And so somehow my life's journey took me to Spiti, and started working on a wonder berry called sea buckthorn, which some of you might have heard of. It has immense medicinal potential, and the project that we began out there was to involve the women and create an alternate livelihood source for them, and ecologically it's really good for the area. So the idea was kind of like conservation of this natural heritage, which would also be really good for the ecology,
as well as create an alternate livelihood for the women there. And that's how my journey began with Spiti. And gradually, while living there, started looking at other livelihood potentials. And tourism was something then that we started working on back again about 20 years ago. We introduced the concept of homestays in Spiti. And again, looking at how women and local youth in the villages could have an additional source of livelihood from, the tourism that had started picking up in the area, had just started making its inroads into Spiti about 20 years ago. Yeah, so that's how the journey began, and that was my, thought process behind starting Muse and starting Ecosphere back then. Yeah. Okay, thank you, Ishita. I would like to know from you, how has Ecosphere's approach evolved over the years? You talked about tourism. So how are you integrating responsible travel with sustainable development in the Spiti Valley, which is very difficult terrain in itself? Right. Yeah. So, I mean, we started, with Muse, which is an NGO, back in 2002. We started working there, and the homestays were a project of Muse. It was initially we were working with other organizations as well. It was a UNESCO project as well that we started these homestays, in Spiti, and Ecosphere gradually grew out of the various initiatives that we were working on, and kind of like, because back then homestays was such a unique concept, none of the regular tour operators really wanted to touch a homestay, so even the local operators that were there, they didn't want to, they were too scared to send their travelers there. They live, what will be the service, what will be the experience. But we had interacted with a lot of travelers, and a lot of travelers were really keen on getting an insight and actually staying with the local community to get an insight about the culture of Spiti. So we started promoting the homestays, and we developed entire programs around the homestays. And because we had, our main objective was looking at how, we were there for the development of the region. So Ecosphere grew out as a social enterprise from these various initiatives of Muse, and also promoting the homestays, and it's a social enterprise. So we channelize the funds back into the different initiatives that we work on in Spiti. So now we run various trips and, programs, as well as experiences that travelers can sign up for, short experiences, long experiences. You can even volunteer. A lot of people are keen to volunteer and spend, contribute their skills and their time. Some people don't have too much of time, so then we develop programs in which they can travel, as well as, spend a few days volunteering on different aspects. So even travelers have basically now got involved in the various initiatives that we work on in Spiti, either directly or indirectly. Yeah, so that's how we merge basically travel and the development of the area. Ishita, I'm sure there is so much to learn from you, and I'm getting a lot of requests. Everybody is so keen to know what work you've done, and they want you to speak in Hindi also a little bit, if that's possible. Sure. I'll speak हिंदी में ठीक है. So इशिता जी, मैं अगला प्रश्न हिंदी में ही पूछती हूँ आपसे. हाँ तो जरूर. over all these years, कभी ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत सी मुश्किलें आई होंगी, बहुत से चैलेंजेस फेस किए होंगे. डिड यू एवर ऐसे सोचा कि अब गिव अप कर देते हैं? हाँ, बहुत बारी ऐसा सोचा, बिकॉज इतने सारे चैलेंजेस थे स्थिति में काम करने का. उस टाइम पे जब स्टार्ट किया था, तो फोन लाइंस नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रोड्स के बुरे हाल थे, तो वहां पहुंचना ही इतना मुश्किल था. पेरेंट्स उस टाइम पे तो उनको आइडिया नहीं था स्थिति कहाँ है. आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, मतलब आई थिंक 4-5 साल हो गए थे, तब पेरेंट्स ने देखा, सोचा कि चलो जाके देखते हैं काम कहाँ करती है. उन्होंने सोचा शिमला से थोड़ा सा आगे होगा, शिमला या मनाली के आसपास होगा. तो दे डिडंट रियलाइज कि कहाँ जाके काम कर रही है. So I remember the first time when my father came there, he was like, "भाई, you are तो coming back with us immediately. मतलब बस तुम पैक करो और वापस आओ." I said, अब तो थोड़ा लेट हो गया है, मतलब अब तो स्टार्ट हो गया है काम. So बहुत सारे challenges थे, and yeah, sorry, so something that came on the screen, some notification. So बीच में, so just like these logistical things, वहाँ काम करना, इंटरनेट नहीं था, so we were trying to do various projects. We were trying to work in the tourism sphere without any internet. It's only about 2 years ago that internet आया है स्पीति में, तो हाँ.
मतलब 2 साल पहले ही जियो पहुंचा है और एयरटेल आया है अब पिछले साल। सो तब से ही इंटरनेट आया है। उससे पहले तो हम बीएसएनएल पे काम कर रहे थे और वहां तो इंटरनेट नहीं चलता है बीएसएनएल पे वहां पर स्पीति में। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, ऐसा भी सोचा कि मतलब गिव अप कर देते हैं, बट somehow persevered and said कि शुरू किया है तो इसको कुछ तो we should give it some kind of direction and कर कर आके 20 साल तो हो गए हैं। सो इशिता जी, इको टूरिज्म इज व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन, तो मैं चाहूंगी कि आप एक लेमन लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि हम लोग टूरिज्म तो सबको पता है, बट इको टूरिज्म क्या है एंड हाउ यू आर फैसिलिटेटिंग इट, आप इसमें क्या कर रहे हैं और कैसे इसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज इकोस्फेयर कर रहे हैं, अगर वो कुछ बता सके हमारे ऑडियंस को। सी मोटा मोटा सी टूरिज्म तो हम सब ट्रैवलर्स हैं, हम इधर उधर छुट्टी पे जाते हैं, राइट। बट ये है कि इको टूरिज्म या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या सस्टेनेबल टूरिज्म, देर ऑल डिफरेंट, वेरी सिमिलर, जस्ट स्मॉल लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ देम। बट मोटा मोटा तो यही है टूरिज्म जो है कि लोकल को बेनिफिट होता है उसमें से, राइट। तो या तो आप जैसे लोकल होम स्टेज में, सो द इनकम इज बेसिकली स्टेइंग एज मच एज पॉसिबल in the local area. Local people are benefiting from that, so be it through livelihoods या उनके जैसे cultural products हैं, handicrafts का development। also जो है आपका जो there's tourism से काफी negative impacts in terms of the environment भी होती है, be it आपका जैसे plastic से, especially bottled water, that has a lot of impact on the natural environment. So, tourism in a way that it is sensitive to all of these aspects. We are going as visitors to a particular place. Can we try and leave that place slightly better? Can we leave that place for the local people slightly better? So अगर हम जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें उसको ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए। दैट मोटा मोटा इज व्हाट इज इको टूरिज्म फॉर अ लेमैन पर्सपेक्टिव। क्या होता है, आप सब मनाली गए होंगे, सब शिमला गए होंगे। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टू मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, बट आजकल उनके हाल काफी मतलब खराब हो गए हैं, बिकॉज ऑफ ओवर टूरिज्म हो गया है इन एरियाज में, So the effort, so basically the objective behind responsible tourism is, can we leave that place better, or at least leave it the way it was? Our traveling to that place, let's not make it worse. ओके ओके। तो इशिता जी, दो क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहे हैं इससे रिलेटेड। एक तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि लोकल्स के लिए हम वो जो एरिया है, इफ नॉट बेटर एटलीस्ट वैसा तो रहे, और दूसरा कि लोकल्स को आप कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एज अ ट्रैवलर बात करूं तो जाती हूँ तो वो दिल्ली वाले और बहुत से लोग जाके बड़े बड़े होटल्स खोल लेते हैं, वहां से बाहर से लोग भी चले जाते हैं। सो हाउ इज योर अप्रोच डिफरेंट? See, basically, like I said, we've been working on, various with the communities on, like we developed homestays. So those homestays are doing very well now. Initially, तो थोड़ा सा दिक्कत था उनको, to market them and all. But now homestays का concept, and even travelers, even हमारे जो Indian travelers हैं, they're very keen to experience a homestay. Maybe not for the entire time that they are traveling to Spiti, but at least for a few nights. और जो हमारे ट्रिप्स चलते हैं, हमने यही देखा है कि मतलब जो फीडबैक हमें मिलता है ट्रैवलर्स से, जो पूरे ट्रिप का उनका हाईलाइट होता है, दैट इज दैट 1 or 2 nights in the homestay where they got to interact with the local community, they experienced the culture, they experienced the hospitality, firsthand. So as a layman, these are some of the things when as a traveler one can do, to try and look for experiences, cultural experiences, not necessarily कि आजकल मतलब कि आप जाके एक फोटो खिंचा दिया बुद्धा के सामने या मोनेस्ट्री के सामने। एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद द लोकल कम्युनिटी, बिकॉज वो चीजें, वो रिलेशनशिप, वो जो कॉन्वर्सेशन आपकी बनती है किसी लोकल के साथ, वो आपके दिमाग में रह जाती है मोर देन कि दैट्स व्हाट वी फाउंड, एटलीस्ट फ्रॉम आवर ट्रैवलर्स। वो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत रिच हो जाता है, आपको ट्रिप को बहुत इनहांस करता है। या फिर वहाँ का लोकल क्यूजीन ट्राई करना, क्योंकि वो सारे काइंड ऑफ फूड यू वोंट गेट एवरीवेयर। आपको अपना बटर चिकन एंड आपका दाल मखनी सब जगह मिल जाएगा, बट जो वहाँ का लोकल है क्यूजीन, वो आपको वही मिलेगा ऑथेंटिक। तो आई एम श्योर इसके लिए आप लोकल्स को ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे होंगे, बिकॉज होम स्टे जब हाँ आपने जी, शुरू किया तब कॉन्सेप्ट कोई जानता भी नहीं था इतना होम स्टेज के बारे में। इनिशियली, बट नाउ तो इट्स पिक्ड अप एवरीवेयर, सो नाउ यू या विल फाइंड होम स्टेज एवरीवेयर। या
Right. So would you like to share some success story with us? हमारे audience को पता चले कुछ ऐसा different, which Ecosphere has been into. So, I mean, over the years, actually, we've done a lot of initiatives, because वहाँ पर बहुत, it's a very unique, setting. It's a very, देखने में तो बहुत सुंदर है. If you come as a traveler, it's very, very beautiful, and it's like a paradise. अरे ये लोग मतलब, it's such a lovely, beautiful place they're living in. But जब आप वहाँ रहना शुरू करते हो तो आपको realize होती है hardships क्या है वहाँ पर. Just the basic things of जैसे बिजली, पानी, खाना, it's very difficult to access, especially winters में अभी. तो सब कुछ ही बंद हो जाता है. Medical access बहुत limited है. So over the years we've looked at कि क्या क्या problems local community face करती है, and we've tried to gradually address those. So from like creating access to जैसे vegetables, सब्जियां all the way from चंडीगढ़ या नीचे से आती हैं. तो वहां पहुंचते पहुंचते एक बहुत महंगी हो जाती हैं. मार्केट है नहीं. So we've built like, so it's not that I can say that this is like the success story, but there are all these little factors. So we've built greenhouses there. So people can even grow vegetables through the year. Abhi recently, was last week, I got a call from a nunnery. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ ननरी जहां पर हमने ग्रीन हाउस बनाया था. तो वो बहुत खुश थी. शी इज लाइक, आप मतलब इकोस्फीयर को बहुत ही लंबी उम्र है, क्योंकि मतलब हम आपके ग्रीन हाउस के कारण पूरी सर्दी हमें सब्जियां मिल पाई. देन वी सेट अप अ सोलर वाटर पंप फॉर द विलेज आउट देयर. सो शी वाज लाइक, आपके कारण मतलब हमें पानी मिला. नहीं तो उनको जान, दे हैड टू वॉक ऑल द वे डाउन टू द रिवर बेड, which is like 2 hours, on slippery snow. 1 year there was somebody from the village who died because of this ritual of having to walk all the way down to the riverbed just to get water. So we've set up solar water pumps which pump up the water from the village level up to, from the riverbed up to the village, at least 200-300 meters above, and so they can get water near the village. So this has had not just like aspects of like cutting down, मतलब वो सारा जो मेहनत उनका होता है all the way down to the riverbed में जाना, उसके अलावा जो है, now they have, they've improved their sanitation, their hygiene because of it. Because आप सोचो कि मतलब एक बाल्टी पानी के लिए आप कितना आप चलोगे और उसको कितना preciously आप यूज करोगे. So you'll only use it for the basic essentials. पीने के लिए, नहाना तो आप भूल जाओ. जानवरों को आप मेल्ट करके आप देते हो उनको, the snow. So it's so these little things now, like for instance, even medical access, people don't have proper diagnostic facilities in Spiti. So we've been doing especially dental care. वहाँ तो मतलब concept ही नहीं है. Oral health is in a very bad situation. So, we've been doing dental camps through Spiti Valley, and the dentists are also मतलब कि shocked. उन्होंने ऐसा देखा नहीं है कि मतलब एक मुंह खोलो and it's like about 20 issues in one mouth. So different levels we're looking at how we can address. And we've been fortunate, we've had lots of volunteers come in, over the years to help out as well. And travelers, and so that's how we basically support our different programs mostly. Yeah. Great. So Ishita, one is of course as you mentioned volunteer based, जिससे support मिलता होगा. दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला, और इफ़ येस आई वुड लाइक टू नो व्हाट वाज दैट सपोर्ट, इफ़ नो आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पॉलिसी लेवल पर, और अदरवाइज कुछ सजेशंस व्हिच वी कैन पास ऑन टू गवर्नमेंट एज हम. See, government, I was working with the government actually before I started this. So I worked 2 years with the government of Himachal Pradesh Rural Development Department. And so yeah, so I left that, but and then started my own NGO. गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट सपोर्ट हमें कम ही मिला है. I'll say शुरू में there was some support that did come in, but बहुत मुश्किल था working with the government actually, because उनका सिस्टम ही थोड़ा सा अलग होता है. ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है थोड़ा सा, और अगर आपका टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट इज गुड, तो देन दे अंडरस्टैंड and they support, but then they don't last very long in that particular position. Then they change, and then a new bureaucrat will come, and then he might have a different idea of what should be done. So it's a constant, almost every year they change at the Spiti level. So it's very hard to keep that same thing going.
with the different bureaucrats that keep changing. तो गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कर सकती है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है, to keep it sustained with them. Yeah, but what suggestions would you like to make? See, you work with grassroots people, at the grassroots level. So, as Himalaya Unnati Mission, we are collaborating with government also. We are a platform, where policy advocacy platform as well. तो क्या suggestions हम दे सकते हैं आपकी तरफ से? क्या लगता है which can benefit people out there and NGOs like you who are working there? See, suggestions तो बहुत हैं, I mean, there are different levels of suggestions in terms of like we've been working on different projects, looking at the context of Spiti. क्या है कि because Himachal में mostly एक particular type के norms and policy होता है, Spiti needs a slightly different policy because its geographical context is very different. Right. So be it from the kind of housing that is there, water requirements that are there, livelihood possibilities that are there. So, I mean, this is a very detailed discussion, but definitely it has to be slightly more contextual and not clubbed in with how it is in the rest of Himachal. Okay. That will be noted and taken care of. Thank you, Ishita. One last question, yeah. For now, because I'm sure audience also wants to ask a lot of questions which we'll be addressing in the end. You've been given so many awards by CNN, IBN, Real Heroes Award, So what impact in future do you wish to achieve in Himalaya? See, I mean, I would like to further replicate it. I feel that, we have done different initiatives, but to further upscale it, I would like to do that, also look into the medical aspect of things, because that I feel is a very crucial need in these remote areas, which get snowed in. Just recently there was a person who died because he couldn't get medical access, because it snowed and the village gets cut off. So, definitely there should be, more access to everyone. For even diagnostic facilities are very limited in these areas. People just don't get diagnosed properly, and hence, they have to travel 2 days to Shimla or to Manali, just to get a basic diagnosis done, So they just ignore it, or they don't have the bandwidth or the money to do it, and then even simple curable things, becomes fatal. Right. So yeah, so I think that is important. Thank you so much, Ishita. It is very May good I ask a interacting. question, Sunita, Yes, here, or yes, should we sure, wait sure. for later? Please, you may. Yeah. So, Ishita, I'm just curious to know कि इंटरनेट के एडवेंट के साथ क्या कल्चरली वो एरिया डाइल्यूट हुआ है या फिर स्ट्रॉन्ग हुआ है, और सिंस वी सीन बाकी सब जगह पे भी जब इंटरनेट आता है तो बहुत सारे कल्चर्स जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो आपकी तरफ से यहाँ होम स्टेज पे वो कल्चरली स्ट्रॉन्ग रहे, ऐसा क्या इनिशिएटिव आपने लिया है? See, ma'am, internet has only come in 2 years ago. So it's a bit early to say. Definitely, since the internet has come in and mobile connectivity is there, you see a lot of, not just the youth, I'll say, but everyone addicted to their phones, on their phones. And, which is, so I'm sure the internet will have the impact where the cultural dilution will happen, and to a large extent, not just the internet, but yeah, it has happened with the advent of, the TV as well coming into the area, where instead of sitting together as a community, how they would earlier, now everyone's glued to their serials on TV. So the internet is one more step towards more, change, I assume. Yeah, so yeah, definitely the younger generation, you will see that gap. I mean, but because it's so new for us in Spiti, it'll take a few years, I think, to really see the impact of it. Thank you so much, Anju ji, Ishita ji. Ishita, I would request you to please stay connected. I'll come back to you because audience has a lot of questions are pouring in for you, which we'll be addressing in the end. Thank you so much Sure. for connected. मैं क्योंकि समय हमारे पास सीमित है तो मैं अपने अगले वक्ता की ओर बढ़ती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कुछ कर गुजरने का जो मादा रखते हैं ना, उनके लिए परिस्थितियाँ कभी बाधक नहीं होती हैं।
ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में भी अपना रास्ता बना ही लेते हैं और ऐसे ही लोगों में शामिल हैं उत्तराखंड की सीमांत तहसील मुनस्यारी की 66 वर्षीय तारा पांगती जी, जो बढ़ती उम्र और पारिवारिक दायित्वों के बीच ना सिर्फ खुद ग्रेजुएट हुई बल्कि हम उम्र महिलाओं को भी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। महिलाओं में शैक्षिक जागरूकता के साथ ही स्वरोजगार के प्रति रुझान बढ़ाने को ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। इसी जज्बे और जुनून के लिए उन्हें 2003 में राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, इस कहावत को सार्थक सिद्ध करने वाली तारा जी सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तारा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वेबिनार में। तारा जी, 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी आपने, आप 14 वर्ष की थीं जब आपकी शादी हुई। आपके शब्दों में जानना चाहूँगी आपकी कहानी कि कैसे क्या महसूस हुआ उस समय? क्या मुश्किलें आई? कैसे प्रेरणा मिली आगे पढ़ाई दोबारा चालू करने की और हिम्मत कैसे जुटाई? इतनी सारी महिलाओं को भी जोड़ा। आपकी कहानी आपके शब्दों में जानना चाहेंगे, तारा जी। जी, धन्यवाद। हाँ, हाँ, मेरा भी कहानी है। सबसे पहले आपको मेरे नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाने की आपने जो ऑनलाइन किया उसके लिए मैं अंजू जी का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मुझे तो बहुत, मेरा तो बखान जितना भी खींचो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्टकट मैं कहती हूँ। मेरा बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, करीब 14 साल पूरा होकर के 30वां महीना लगा था तभी मेरी शादी हो गई थी। 70 साल के उम्र में ही मेरा बच्चा हो गया था। बहुत कम उम्र में बहुत घर का कार्य करते हुए मैं केवल 8वीं कक्षा में पढ़ी थी, 8वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। फिर एक आदत मेरी ऐसी थी कि जैसे मैं पता नहीं क्या मैं सोचती थी, रोज की डायरी लिखती थी, कभी कुछ जो भी घटना हुआ, जैसा भी हुआ, जिनने भी प्रेरणा दिया कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे करते करते पढ़ाई में मैंने अपना कलम जो रोजाना लिखने का सोचा था वो मैंने वो नहीं किया, मतलब उसको सुचारू रूप से वो रखा मैंने। फिर अपने बच्चों के साथ भी उनको पढ़ाती थी मैं थोड़ा ऐसा जो मुझे जितना आती थी। तो बहुत कष्ट जीवन बीतते हुए घर का भी काम, तो हमारा वहाँ का और चीज तो कुछ नहीं है। हम ना अपना वो जो हमारा वहाँ का कारोबार है, हमदन बिनना, पश्मीना, ऊन चान करना, ये सारे विपणन का जो हमारे मर्द लोग बाहर विपणन के लिए देते थे, कोई वहीं भी ग्राहक आकर के खरीदते थे, तो वो काम हम सुचारू रूप से करते रहते थे। फिर उसके बाद ना, फिर बाद में ऐसा लगा कि मुझे क्या कहते हैं कि अपना काम के साथ साथ पढ़ाई तो छूट ही गई थी, कुछ भी नहीं था। तो बच्चे जरा बड़े हो गए, तो जब मेरा बच्चा हाई स्कूल से के क्लास में वो बाहर पढ़ता था फिर मुझे सोच आई कि एक ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी जो चला, तो ओपन से कुछ वो करना है, ओपन मुक्त विश्वविद्यालय का। हाँ, उसके ओर से फिर हम लोगों ने, मैंने तो हाई स्कूल का तो मुरादाबाद से दिया था, तो उसके बाद फिर इंटर का मुक्त विश्वविद्यालय का पत्राचार में ही किया था। फिर बीए का जो किया तो बीए में बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड 2000 ये 18-20 में कंप्लीट किया हूँ। एमए और डबल एमए भी कर लिया। हाँ, फिर किया। फिर अब जो पढ़ाई क्षेत्र तो यहाँ तक पहुंची मैं इस लेवल का, जो भी अपने परिवार के साथ करते करते। अब फिर बाद में मुझे लगा उसी टाइम से मैं एक छोटे से अपने गांव के महिला मंगल दल के उसमें कुछ वो रहती थी, क्या कहते हैं कि महिला मंगल दल में अपना भागीदारी, एक छोटा सा सचिव पद में। तो मेरा जीवन कुछ सामाजिक वर्कर में भी घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए उस ओर भी चला। हाँ,
तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं तो कुछ करना चाहती हूँ। हेलो, हेलो। जी तारा जी, आपको सुन पा रहे हैं। अभी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। आपका वो माइक पर क्लिक करना होगा, अनम्यूट कर लीजिए। इसमें हाँ, हाँ, हाँ। अभी आ रही है आवाज़। जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर बाद में फिर जैसे पढ़ते रहे, पढ़ाई भी बाद में पूरा हुआ, जो भी हुआ बच्चों के साथ-साथ फिर महिला समाज के कार्य में भी जुड़ा। फिर मुझे लगा कि एक उससे भला मैं एक छोटा-सा एक कोऑपरेटिव संस्था खोला जिसमें तारा 500। जी, माफ़ी चाहूँगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। जी, हम आपके कोऑपरेटिव समूह पर आने से पहले मेरा एक प्रश्न है आपके लिए कि जी। आपने अभी बताया कि आपने एमए भी कर लिया है, बीए भी कर लिया। तो ये जानना हाँ, चाहूँगी कि पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ तो थी ही, है ना? वो तो एक बाधा अपने आप में रही ही होगी। जी, इसके जी। अलावा और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? लोग घर के बड़े मान गए क्या आसानी से? क्या आस-पास के लोगों ने कभी बोला नहीं कि भई इस उम्र में ये सब क्यों कर रही हो, बच्चे सँभालो? नहीं, बहुत, बहुत जूझना पड़ा, बहुत जूझना पड़ा। क्यों नहीं, लोग तरह-तरह के बातें भी, अरे घर सँभालो, पढ़ाई का इस उम्र में क्या जुनून है। तो मैं अपने कार्य पर घर का भी बहुत सवेरे 4 बजे उठ कर के अपना घर का काम तैयार करके, बच्चों को स्कूल तैयार करके लगाया। सब कुछ कर के मैं थोड़ा सामाजिक कार्य में भी गई। सामाजिक करते समय भी ऐसा लगा मुझको कि अरे इतने लोग कहते थे इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, इतने कैसे-कैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाए, क्या इतने ही पढ़ाई में क्या कर पाएँगे? इस जुनून ने मुझे पढ़ाई की ओर धकेला। हुँ। तब मैं अपना पढ़ाई भी मैंने कहा है कि यदि मुझको मेरे बाधक पढ़ाई से लोग हँसी भी उड़ाते थे, लोग कैसे-कैसे पढ़े लिखे हैं तो इस लेवल पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं खुद ही पढ़ कर के क्या कहते हैं, क्या मैं पढ़ पाऊँगी? पढ़ सकती हूँ तो मैं ऐसा काम करती हूँ। तो ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट बना, लोगों ने भी जैसे आप लोग अंजू जी ऐसे बोलने का यहाँ तलक मुझे लाने का उनका श्रेय जा रहा है उनको। इसी प्रकार से कई लोग, हाँ, तो मेरे कार्यक्रम को देखते हुए बहुत वहाँ पर उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि आप जारी रखो, तो मैं सांस्कृतिक भी सामाजिक भी और लोकतंत्र में जो भी जिस प्रकार का बाधक था, हर चीज़ में तो इस प्रकार से रही। हाँ, जैसे मेरी तारा उम्र जी, ब जी, इस फिर से माफ़ी चाहूँगी। जी, अ, जी। आप बाहर वालों ने तो बहुत विरोध भी किया और कुछ बाहर वालों ने सहयोग भी दिया। जानना जी, चाहती हूँ कि घर वालों का कैसा नज़रिया था? सहयोग मिला या फिर बोले कि अरे भई ये सब क्यों कर रही हो? आपके पति और आपके घर के सास-ससुर रहे होंगे, बच्चे उन्होंने बोला कि मम्मी अब इस उम्र में क्या कर रहे हो? कहीं हमारा इंसल्ट ना हो जाए। तो घर वालों का कैसा नज़रिया था वो जानना चाहूँगी? ऐसा नहीं रहा। मेरा घर का ऐसा रहा है कि मेरे पति ना मुझसे 22, 24, 25 साल के बड़े हैं। हाँ, तो उनका जैसे मेरे घर में शादी हो गई थी, तो मेरे जेठानी-देरानी थे, फिर सब अलग-अलग रहते थे। तो उस हम लोग भी अलग ही रहे, उतने छोटे उम्र में मुझे तो आजकल ऐसा सोचना पड़ता है कि लोग तो बिल्कुल 25-30 साल की उम्र में शादी होकर के भी एक बच्चा सँभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कैसी रही होगी मेरी परिस्थिति, जो मैंने 17 साल से ही बच्चों को जन्म दिया। उसमें से भी 6 बच्चे हुए, 5 बेटे, 1 बेटी। हाँ, तो ये 2 तो छोटे उम्र में ख़त्म हो गए, 2 बेटे, एक 6 साल के, एक 7 महीने का। एक बच्चा शादी के लायक था तो वो एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ और 9 दिन के बाद मेरा एक पेपर था, मुझे जाना पड़ता था वहाँ करीबन 22 किलोमीटर। तो उसी रास्ते जहाँ एक्सीडेंट हुआ, मेरा जुनून ऐसा रहा कि शायद मैं उस दिन तो मैं पेपर कैसे देती, उसी रास्ते से रोना-धोना थोड़ा आँसू जितना लिख रही थी उतना आँसू बैक पेपर आया उस साल। तो मेरा जुनून मेरे कहानी तो मैडम बहुत ही मतलब तभी तो मैं आपको कह रही हूँ और शॉर्टकट भी बताती हूँ, फिर भी मेरा फिर भी हो ही जाता है।
हेलो, हाँ, जी, शॉर्टकट भी बता रही बता। हूँ। हाँ, हाँ। तो ऐसा ये एक आप जो पूछते जाएँगे उसी का मैं जवाब दूँ, नहीं तो मैं इधर-उधर भटक जाऊँगी, ऐसी परिस्थिति थी मेरी। हाँ। तो मैं सामाजिक भी शायद मैं भगवान ने चाहा होगा जो भी किया, तो इस उम्र में मैंने बच्चों को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल तक पहुँचाया, सबसे बड़ा बेटा और बच्चे घर में पढ़े और भगवान इंजीनियर लाइन में लगाया। दूसरा ओवरसीयर में ये पॉलिटिक बहुत बढ़िया हाँ, तारा जी। जब आपने ओवरसीयर। खुद के लिए इतना कर लिया तो बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना था आपने। तो जानना चाहूँगी कि कैसे ये रुझान महिलाओं को जोड़ने का विचार कैसे आया? आपने ऐसे बहुत सी जो महिलाओं की पढ़ाई छूट गई थी उनको भी जोड़ा, उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ा, वो हाँ, कैसे हाँ। किया आपने? वो कैसे मैंने प्रेरणा इसलिए किया है कि जब जब मैं इतने उम्र में पढ़ सकती हूँ, मेरा एक 3-4 सौ महिलाएं जो गांव घर के 14 ग्राम सभा के महिलाओं का जो मैं एक अध्यक्ष थी, तो उनका पूरा मैं कोऑपरेटिव संस्था जैसे चलाती थी। तो मीटिंग होती थी हमारा, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि क्योंकि हम लोग महिलाएं जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र पर है, हम अपने पति पर निर्भर रहते हैं, और इस प्रकार से हमने नहीं रहना है। जैसे बैंक जाना है, कहीं अपना कोई कागज फाइल लगाना है, खुद भी करो, दूसरा का भी मदद करो। और ऐसे इसलिए होगा जब आप भी पढ़ोगे मेरे तरह। और मैंने तो 8वीं पढ़ा था, शादी हो गया, फिर इतने साल बाद मुझे होश आया जो मैं पढ़ाई के लाइन पर गई। मुझे तो बताने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन आपको तो मैं बता रही हूँ क्योंकि आप कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। और इसलिए मैंने कर सकते हो करके तब मेरे साथ करीबन कुछ लोग तो महिलाएं पढ़े तो थे, लेकिन उनका ऐसा था स्कूल में थे वो लोग, तो उनका बीए भी कंप्लीट नहीं था, इंटर में खाली वैसे स्कूल में संविदा हिंदा में लगा था। तो मैंने कहा देखो कल के दिन आपको डिग्री मांगेंगे, ये मौका है, इसको मत चुकाओ, इसमें हासिल हो जाओ, मेरे साथ दो इम्तिहान। मैं तो अभी ये फर्स्ट ईयर दे करके सेकंड ईयर में पहुंची हूँ, तो तुम लोग भी इस प्रकार से मेरे साथ आओगे करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ करीबन 59 महिलाओं ने फॉर्म भरा था, उसमें से करीबन कुछ लोग छूट गए थे, बहुत लोग छूट गए थे क्योंकि नहीं कर पाए वो लोग। किसी को परिवार का दबाव, किसी को अपना वो बच्चों के लिए समय नहीं देना। अब ये चीज़ तो करना ही पड़ता है, जब हमको इतना लक्ष्य में जाना है तो हमको 4 बजे रात तो उठना ही है ना, काम करने के लिए। तो इस प्रकार का करके तो यही मेरा अपना एक लोगों को प्रेरणा देने, जागरूकता की ओर लेने का एक लक्ष्य रहा। बहुत और लोगों ने तारा जी, रोजगार के क्षेत्र में कैसे जोड़ा आपने महिलाओं को? रोजगार के क्षेत्र जैसे में आपने इसलिए हथकरघा जो शिल्प की भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो जी, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली, आप पहले से जानते थे या कैसे ये मतलब आगे बढ़ी ये यात्रा? ये बात हमारी ऐसा है कि जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी कहा, हमारे परंपरागत से जो हमारे माँ, दादा, दादी और लोग थे, माँ लोग, दादी लोग थे, वो लोग जब बिनाई करते, कुछ काम करते, तो हम भी सीखते थे उनके साथ-साथ ही। क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि उनके साथ हम सीखेंगे तो आगे हमारा भी काम आएगा। वो लोग भी सिखाते थे हमको। हमको तो कोई प्रशिक्षण का ज़रूरत नहीं था, अपने माँ-बापों से ही ये प्रशिक्षण मिला ऊन-सान के लिए जो हम कालीन बनाते थे, शॉल, स्टॉल इस प्रकार से। तो ये प्रशिक्षण तो जब सारे लोग हमारे आजकल हो रहा है कि ये प्रशिक्षण नया तकनीकी लाओ, इसमें थोड़ा नया जोड़ो, ये करो, सो करो। न सरकार की योजना जो रखते हैं ऊपर ऊपरी जो हम जैसे लोग काम करते हैं, हमारे लिए तो उतना सरकार से भी कोई सहयोग नहीं मिल पाया। जो भी किया हम अपने स्तर से ही हमने अपना कदम को बढ़ाया जैसा भी है। तो मैडम सुन रहे हो आप? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल तारा हाँ, जी।
तो ऐसा रहा, मेरा जुनून ऐसा रहा। तो फिर हमको ऐसा रहा, फिर मेरे काम को देखते हुए, जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते थे। तो जैसे हम लोग, जैसे एक बार राज्यपाल आए, तो कभी मुख्यमंत्री भी आए, ये तो 2000 बाद की बात है। लेकिन मैं तो सन 72 से ही इस कार्यक्रम को, जब शादी होते ही इस कार्यक्रम के रुझान को मैं करती गई। तो तो तारा जी, जी, जैसे जहाँ तक आप पश्मीना की बात कर रही हैं, दरिया हैं, दन्ने हैं पहाड़ के, तो जी, बनाना तो आपने बोला कि पहले से सीखते आए अपने बड़ों से, पर उसके जी। विपणन की जब बात आती है, आपने महिलाओं का समूह बना लिया, बन तो जाएगा, पर हाँ, हाँ। विपणन, जब मार्केटिंग की बात आती है, उसको बेचने की बात आती है, तो उसमें क्या दिक्कतें आई, कोई सहयोग मिला, कैसे उसको आपने उन दिक्कतों का सामना किया, उनको उनसे उभर कर आए? दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई। तो हम अपना सामान के लिए, विपणन के लिए, जो मैं छोटा सा कोऑपरेटिव का जो मैं कर रही हूँ, मैं सन 88-89 से इस कार्यक्रम को रखते गई। लेकिन इसको हमारा 1992 में इसको मैंने एक संचालन किया। इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। सन 98 99 में, 1999 में कानपुर से ये रजिस्ट्रेशन होके आया। तो बता रहे थे कि उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश में हम हमसे केवल 3 सदस्य ज्यादा हैं। सेकंड नंबर में हमारा कोऑपरेटिव है। इतने लोगों को जोड़ा है। तो उनको इसलिए जोड़ा था कि घर में जैसे ऊन चान काम कर रहे हो, तो तुम्हारा विपणन के लिए हम कहीं कुछ ढूंढते हैं, कुछ करते हैं करके। तो वहां तो 2-3 ऐसा था कि एक जौलजीबी मेला, एक बागेश्वर मेला था। तो हम साल भर जितना बनाते थे, हमारे पति लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, घर के मुख्य सदस्य लोग, वो वहां जाते थे व्यापार के लिए। तो कम ज्यादा जो भी हुआ, तो वहां पर वो लोग उसको विपणन मतलब बेच करके आते थे। तो वहां का थोड़ा बहुत जो भी सामान उसको लेके आते थे। तो फिर इसी प्रकार से चलता था। फिर बाद में हम लोगों ने, जैसे जैसे ब्लॉक स्तर का जब खुला, ये क्या कहते हैं कि अपना अपना ब्लॉक क्षेत्र में ये महिला समूह का योजना। तो प्रथम महिला हूँ मैं समूह में। केवल अपने उससे मैंने 101 समूह खोला। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, वहाँ ये ब्लॉक स्तर से भी समूह खोला गया। तो प्रथम ये महिला समूह की फेडरेशन अध्यक्ष रही मैं, मुनस्यारी ब्लॉक की। जो जिला लेवल का भी फेडरेशन अध्यक्ष रही। 8 ब्लॉकों की अध्यक्ष रही मैं। तो वहां पर जैसे जिला अधिकारी लोग और सीडीओ, कुछ ऐसे लोगों से मीटिंग होती थी, संपर्क होती थी। तो उनसे भी, उद्योग विभाग से थोड़ा उनसे भी बातचीत किया। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, थोड़ा हमारे सामान विपणन के लिए परेशानी है। तो सरस मार्केट खुला। जैसे हमारा खुद ही एक मुनस्यारी में खोला, आगे बात करके, तो उन लोगों ने वहां भी खोल दिया। और एक पिथौरागढ़ में, और एक धारचूला में, एक ये जीजी हाट में, बहुत जगह पर 8 ब्लॉक में 8 जगह पर ये खुला। तो हम अपना सामान विपणन के लिए मार्केटिंग सरस जो खुला था उसमें रखते थे। तो अपने समूह के 2-4 महिलाओं को रख करके, जो बाहर से टूरिज्म आते थे और लोग भी आते थे, तो थोड़ा बहुत विपणन होती थी वहां पर भी। फिर बहुत उसके अच्छा तारा जी, ये जो विपणन की समस्या तो मुझे समझ में आया आपने इतने अच्छे से, और इतनी, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि जी, एक एक समूह खोलने में सरकार को इतनी दिक्कत हो जाती है, और तारा जी ने 101 समूह जो है महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो स्टार्ट किए हैं, और उनको जोड़ा है और आगे बढ़ाया है। यहाँ पर तारा जी, मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि आपकी सरलता इतनी प्रेरणादायी है। इतने जी, बड़े बड़े काम करने के बाद भी जो आप बोल रही है ना, आपने महिलाओं को बोला कि भाई अपने काम बैंक में जाके खुद करना है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये केवल पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं नहीं, शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं भी ऐसी हैं कि अपने पतियों पर या अपने घर के बेटों पर डिपेंडेंट होते, निर्भर करते हैं इन कामों के लिए। तो आपने जी, बहुत
ही छोटे से क्षेत्र से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है आपकी कहानी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। बहुत सारे प्रश्न भी आपके लिए आ रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी प्रेरणादायक कहानियाँ बताने के लिए। मैं अपने अगले वक्ता पर आना चाहूँगी अब। जी महिमा मेहरा जी, शी इज़ द को-फाउंडर ऑफ हिमालय वॉलंटियर टूरिज़्म, working in the field of rural education, community development, skilling and entrepreneurship, environment and sustainability, and also healthcare. She is also the founding director at the Sroth Rural Education and Development Foundation, an alternative education center in Tirthan Valley, Kullu, for children from remote villages. She is deeply committed to supporting schools in remote locations with no basic facilities. She is also engaged in various organizations such as Arvindam Foundation and the charter member of Spectrum Pune and NGO. She is part of last 18 years. Working in rural villages led her to be working as a chief consultant with Homestays of India. She is the National Vice President of All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice and member of National Council of News and Broadcasting. With her extensive experience, she writes impactful blogs about change makers and travel experiences. A warm welcome, Mahima ji. महिमा जी, सबसे पहली जो आपसे, क्योंकि हमारी यहाँ ऑडियंस बहुत सी हिंदी वाली भी है, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगी। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आप हिमालय से नहीं है, यू आर फ्रॉम, एज फार एज आई नो, यू आर फ्रॉम पुणे। तो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर रहा, कैसे आप हिमालय के लिए आपने काम करना शुरू किया, क्या ड्राइविंग फोर्स था, कैसे, आई एम श्योर लोकल से रेसिस्टेंस भी आई होगी थोड़ी, तो कैसे चैलेंजेस ओवरकम किए, कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया, ये सब आपकी कहानी थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। जी ज़रूर। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अंजू जी का। हम फाउंडेशन एंड सुनीता बहुत अच्छे से आप पूरा कंडक्ट कर रही है एंड ऐसे ही कोलैबोरेशंस के कोलैबोरेशंस की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ, मैं बस इन शॉर्ट बताऊंगी कि ऑलवेज हम महाराष्ट्र में ही रहे हैं, यहीं एनजीओ में हम बहुत सालों से काम करते थे और स्कूल में काफी 15-16 साल पढ़ाया है, तो एजुकेशन हैज बीन माय पैशन। एंड एक फेज आया लाइफ में कि जब लग रहा था कि आप जैसे एक ट्रैफिक जाम में अटक जाते हैं और आपको लगता है कि हर तरीके से आपको कुछ, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स बट हिम्मत नहीं होती। तो आई थिंक वो पहला स्टेप आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना का एक कोशिश करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो हम एक बार एक वॉलंटियरिंग के तरीके से मैं कारगिल लद्दाख गई सबसे पहले एंड आई वॉलंटियर्ड इन अ स्कूल देयर एंड मेरे को लगा बस 15-20 दिन मैं वहां वॉलंटियर करके वापस आ जाऊं एंड कभी नहीं प्लान किया था कि वहां जाके कुछ एस्टेब्लिश करना है। मगर आई थिंक डेस्टिनी टेक्स यू वेयर यू बिलोंग एंड जब मैं वहां 15-20 दिन रही तो मुझे लगा कि पढ़ाने के अलावा हम शाम में लोगों के साथ बैठते थे, तो वहां लेडीज के साथ गपशप करने लग गए, काफी चीजें हम डिस्कस करने लग गए, काउंसलिंग टाइप एक इनफॉर्मल सेशंस होने लग गए। तो 15 दिन के बाद मुझे लगा कि अगर हम शहर वाले अगर हम रूरल एरियाज में जाएं और अपने स्किल शेयर करें, जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करें बिल्कुल सेल्फलेसली, तो वहाँ डेवलपमेंट में बहुत सपोर्ट हो सकता है। तो ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि आई थिंक दिस इज अ ह्यूज स्टेप विच एवरी सिटीजन अगर अपनी जिम्मेदारी समझे। हम बहुत इजीली ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को या अपने आसपास के पॉलिटिकल पार्टीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं सही हो रहा। मगर अगर हर सिटीजन अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी कंट्रीब्यूशन खुद करे विदाउट पॉइंटिंग फिंगर्स, तो आई थिंक बहुत सारी डेवलपमेंट में सपोर्ट हो सकती है। तो ये तरीके से मैं वहाँ धीरे धीरे वर्कशॉप्स करने लगी। जब भी ट्रैवल कर पाती थी हम वहाँ करने लगे। तो इसी चक्कर में एक वर्कशॉप करने हम तीर्थन चले गए, जो मुझे इनवाइट किया गया, पंखी सूद जी ने वहाँ इनवाइट किया और यूथ के साथ हम वर्कशॉप्स कर रहे थे, ऑन करियर गाइडेंस, ऑन काफी सारे वहाँ मेंटल इश्यूज होते थे, ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम्स होती थी, वुमेन्स इनिशिएटिव्स में वहाँ कोई इंकरेजमेंट मोटिवेशन नहीं थी, तो हम वो वर्कशॉप्स करने लग गए एंड वो बहुत अच्छे से पिकअप हो गया। एंड अगेन वंस अगेन डेस्टिनी प्लेड इट्स पार्ट एंड फिर हमने वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ही सेटअप कर दिया कॉल्ड स्रोत। सो जो रजिस्टर्ड एक एनजीओ है, इट इज फॉर एजुकेशन फॉर सपोर्टिंग रूरल स्कूल्स। तो अब हम अबाउट 70 to 80 बच्चे हमारे वहाँ सेंटर में आते हैं। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि हम वहाँ की जो लेडीज हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, अभी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि लोकल लोग ही टीचिंग स्किल्स में आ जाए। सो बेसिकली एम्पावरिंग वुमेन
रूरल लिटरेसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं एंड माइग्रेशन को आप डील कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये शुरू हुआ। फिर हमें काफी रिक्वेस्ट आने लग गई कि आप तो यहाँ कर रहे हो, आप हमारे भी स्कूल्स में आप ये सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करिए। बट देन वी डिडंट हैव अ पेड टीम विद अस, तो हमने सोचा कि भाई वॉलंटियरिंग को ही एक हम बेस बनाए एंड वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड हिमालयन वॉलंटियर टूरिज्म, जो फेसबुक में पहले पॉपुलर हो गया, अभी वेबसाइट एंड इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ट्रैवल फॉर अ कॉज इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो भी ट्रैवल कर रहा है, अगर आप थोड़े घंटे या थोड़े दिन आप दे दें, अपने जो भी स्किल सेट हो आपकी, like if you're even an IT professional, you can teach wherever you're staying, you can teach them IT skills, yeah, how to use your mobiles better. If you're somebody, you're a CA, you can teach financial literacy. If you're from the banking institute or being a banker or a retired banker, you can teach about banking and financial management. तो इस तरीके से हमें धीरे 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 काफी सपोर्ट मिलने लग गया and today we have about 18,000 volunteers registered with us, so it's picked up very well. जी सुनीता जी पूछे। Very nice, very nice. Great to know that. महिमा जी, my next question is कि महिलाओं के क्षेत्र में भी आप काम कर रही हैं, खुद एक महिलाएं हैं। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, पहाड़ में मैं भी रह चुकी हूँ 5 साल लगभग। तो पहाड़ में जो मेन बर्डन है ना, वो 75% जो है वो महिलाएं ही ले रही हैं जिम्मेदारी, बिकॉज माइग्रेशन भी एक रीज़न है उसका, और भी बहुत से रीजंस हैं। एंड साक्षरता भी है, एटलीस्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी हद तक है। पर एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए होता है, शायद ये जानकारी उनमें इतना नहीं है, जैसे अभी हम तारा जी से भी सुन रहे थे। तो उस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए जी। प्लीज। तो अभी श्रीता मैं थोड़ा ये बताऊं कि जो हमारा फेसबुक पेज है, तो वो बेसिकली होता है कि जैसे आप या हमारे जैसे जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप अभी समझो कश्मीर चले गए, आप 15 दिन वहां रहना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने वर्क फ्रॉम होम उनका एक हो गया है, तो वो चाहते हैं कि पहाड़ों में जाके रह जाएं। तो 3 महीना 6 महीना 1 साल तक लोग अभी वहां 3-4 साल से काफी लोग वहां रहते हैं और अपना ऑनलाइन काम करते हैं, मगर फ्री टाइम में दे आर वर्किंग विद द कम्युनिटी जहां वो रह रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल रिटायर्ड कपल हो गए, ठीक है, तो उनको 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो अगर वो कोई गांव में 5-6 हजार में उनको रेंट में घर मिल जाता है कोई होम स्टे में, तो पहले तो वो होम स्टे ट्रेनिंग हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो आप दे दीजिए। फिर वहां की जो औरतें हैं उनको आप साथ में लेके शाम में आप बैठे हो तो वेरी इनफॉर्मली आप उनको अचार बनाना सिखा दिया, आप कोई बुनना सिलाई सिखा दिया। अगर वो ऑलरेडी कोई वहां ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, कोई कम्युनिटी चला रही हैं, या कोई कोऑपरेटिव चला रही हैं, तो एज अ स्किल्ड पर्सन फ्रॉम एन अर्बन एरिया आप बहुत कुछ उनको गाइडेंस दे सकते हो। तो आप वहीं रह रहे हो, तो आप 1-1.5 महीने में उनके साथ आपकी मेल जोल बढ़ जाती है, एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। तो आप उनको डिजिटल लिटरेसी है, मोबाइल कैसे यूज करना है, स्पोकन इंग्लिश के छोटे मोटे आप उनको एम्पावरमेंट स्किल्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप छोटी छोटी मार्केटिंग कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करना है, आप जैसे फेसबुक पेज बना लिया या अमेजोन पे कैसे रजिस्टर करना है। तो आप यूथ को भी हम बहुत एनकरेज करते हैं कि कई बार यूथ जो जाते हैं 25 to 35, अरे हम क्या करेंगे, वी डोंट हैव अ PhD इन रूरल डेवलपमेंट। बट ऐसे वो जरूरत नहीं है, आप यंगस्टर्स के साथ बैठ के आप उनको मोबाइल से ही हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड, हाउ डू यू मार्केट, आपके घर में माएँ कुछ बना रही हैं, दादी कुछ बना रही हैं, अचार बना रही हैं, कोई चीज, उसको कैसे मार्केट करना है। सो ये बहुत सपोर्ट मिल जाता है व्हेन इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियरिंग एक्टिविटी। ये टाइम पास वाली नहीं है, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड, हम फॉर्म भरवाते हैं, स्किल सेट्स लेते हैं, देन वी कनेक्ट दैट स्किल सेट टू द रिक्वायरमेंट भी हमारी फेसबुक पे ही आ जाती है। वहां रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वी हैव अ फार्म, तो उसको हम इफ समबडी कैन कम एंड ट्रेन अस इन फार्मिंग टेक्निक्स। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वी इनकरेज पीपल कि जब जा रहे हैं तो आप 3 से 4 घंटा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही वर्कशॉप्स करिए। बच्चों को स्कूल से लेके आप उनको वेस्ट यू टेक देम ऑन अ ट्रैक और उनसे आप प्लास्टिक वेस्ट उठवा दीजिए, फिर उसको रीयूज कैसे करना है ना, तो उसको कैसे आप छोटे छोटे बेंचेस बना सकते हो, आप प्लास्टिक को रीयूज बॉटल्स कर सकते हो टू मार्केट योर ग्रेन्स विच आर ग्रोइंग इन दैट रीजन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम एज अ टूरिस्ट वी एनकरेज कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करिए, वॉलंटियर फॉर डेवलपमेंट इन एवरी सेक्टर। ओके, इट कुड बी हेल्थ केयर, जैसे कई डॉक्टर्स, हमें बहुत लिस्ट आती है
कि वी आर गोइंग ऑन अ हॉलिडे बट हम 3 या 4 दिन का कैंप करने रेडी हो गए, तो हम लोकल स्कूल या लोकल वहाँ क्लिनिक में वी लिंक देम अप एंड दे डू सम डेंटल वर्कशॉप हो गया, आई टेस्टिंग वर्कशॉप हो गया, डेंटल डायबिटीज वर्कशॉप्स हो गए, कैंप्स हो गए, तो ये रेगुलर वो चलता रहता है, you know. So this is the way we are supporting women's entrepreneurship programs also. जी ओके ओके सो महिमा जी, एक्चुअली क्वेश्चंस तो बहुत से आ रहे हैं मेरे मन में एंड आई एम श्योर ऑडियंस के मन में भी, जी। बट फॉर नाउ वन लास्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत चैलेंजेस भी आते होंगे, जी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों की टीम नहीं है जो बस हम अपना काम कर रहे हैं. यू आर गैदरिंग वॉलंटियर्स हु आर फ्री स्पिरिटेड, यू जी कैनॉट बाउंड देम. सो हाउ, जी व्हाट challenges do you face and how do you overcome them? या सो चैलेंजेस तो इनिशियली बहुत आई बिकॉज इट इज अ वॉलंटियरिंग एक्टिविटी, तो हम पे नहीं कर सकते किसी को बिकॉज हमारी कोई रेवेन्यू जनरेशन फॉर्मेट नहीं था कि हम कोई मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, ठीक है. तो वी वर वांटिंग जेन्युइन वॉलंटियर्स, बट एज आई सेड कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो वैसे भी कई लोग हमारे साथ जुड़ गए. एटलीस्ट 30 to 35 पीपल वी हैव हु आर रेगुलर एक्सपर्ट्स विद अस, जो हर फील्ड में वर्कशॉप्स लेते हैं, ऑन ग्राउंड जाके प्रोग्राम्स एक्टिवेट करते हैं. तो ऐसे कई लोग हैं जो जेन्युइनली हमारे साथ जुड़े हुए हैं. प्लस इट इज रजिस्टर्ड नाउ, सो वी आर आल्सो लुकिंग एट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. जैसे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग अस टू सेट अप कोऑपरेटिव्स इन वेरियस विलेजेस, ठीक है. हम फाउंडेशन बहुत सपोर्ट करता है, गाइडेंस मिल जाती है कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है. तो ऐसे कई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकअप है जो हमें डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो लाइक NCUI इज गिविंग वर्कशॉप्स फॉर वुमेन, तो हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स रेगुलर चलते हैं थ्रू देम, which are supporting women to start cooperatives, and how do you do it, expert advice, marketing advice, all that is coming through our volunteers. जी, तो या आगे जाके देखते हैं, धीरे धीरे जब रास्ते पे चल पड़े हैं तो लोग भी मिल जाते हैं जो हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं. So I'm sure we'll be able to contribute in our own way. Thank you so much, Mahima ji. I think आपकी वो जो एनर्जी एंड दैट पॉजिटिव स्पिरिट इटसेल्फ, वो कारवा बनता चला जाता है आगे. जरूर. So it was wonderful interacting with you, but I'll be coming back to you again. I would request you to please stay connected. For now, I will move on to our in-house inspiration, Anju Bahari ji. So her career spans over 23 years in the field of education, training, and development. It's been a blend of working with the best corporate houses and reputed academic institutions on one hand, and on the other, bringing holistic transformation across employment and entrepreneurial spheres. She's a seasoned and accomplished professional in holistic people development, practicing and coaching on physical, mental, and spiritual wellness. Her academic preparation is in the field of behavioral sciences, master trainer in soft skills, cognitive behavior therapy, advanced life coaching, NLP, NAC, as an A-grade trainer and design thinking. She is also certified voice and accent trainer, training in voiceovers for radio and films, which not most of us might be knowing. She has conducted training programs for leading corporate houses such as IBM, Amdocs, to name a few. She has also worked as a visiting professor at Institute of Business Management, Pune. As a consultant, she has trained several batches of students of aviation, travel, and hospitality at Franklin Institute of Air Hostess Training at Pune and Gurgaon as their personality coach. And in fact, whenever I travel with her, I keep hearing her stories also on this. So her management experience in the education industry includes working as project director for PMKK, which is Pradhan Mantri Kaushal Kendra, and admission manager at TASMAC, a business school in Pune, for admissions at University of Wales, UK. She also served as general manager operations, running 7 centers for Speakeasy, an institute for spoken English and personality development in Chennai. As a woman entrepreneur, she was chosen to be part of the Goldman Sachs Scholarship Program, a management course based on entrepreneurship conducted by the Indian School of Business, Hyderabad, for 10,000 women entrepreneurs from India. She is at the board of Center of Excellence of Banyan Tribe, a business networking group. She is currently associated with Himalaya Unnati Mission of Shishi Rural Program Trust of the Art of Living Foundation, and she heads the institutional partnerships and handles and manages the digital literacy, skills and cyber safety program for 17 schools and 5 prisons in Uttarakhand, जिसके बारे में आज हम और सुनेंगे उनसे. She is a certified yoga therapist from Shishi School of Yoga, member of Yoga Alliance, and certified by the Ministry of Ayush as a registered yoga practitioner. She is also a qualified Marma practitioner from Shishi Marma AOL Bangalore. She is a passionate storyteller, a voiceover artist, a Nadi astrologer, Reiki master, numerologist, law of attraction coach, EFT, chakra healer,
and a happiness program facilitator for the Art of Living Foundation. मैं अक्सर बोलती हूँ उनके बारे में कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, तो सुना था शी इज मास्टर ऑफ ऑल. तो वेलकम अंजू जी. एंड मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप हमारी इन हाउस इंस्पिरेशन है. मैं फिलहाल के लिए इनफैक्ट इतनी स्टोरीज आपसे सुनती रहती हूँ और इनसे इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी वो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. बट समय की कमी को देखते हुए फिलहाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आप हम के अंडर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो आप रन कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं 17 स्कूल्स में और 5 प्रिजन्स में, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसका थोड़ा ओवरव्यू दीजिए हमारे ऑडियंस को, अंजू जी. श्योर. बहुत धन्यवाद सुनीता. और कुछ ज्यादा बता दिया आपने मेरे बारे में. आई होप आई कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव रेज्ड. सो जैसे सबने कहा कि वो यहाँ पे है क्योंकि डेस्टिनी ने उनको वहां भेजा. मैं शायद यहाँ पे हूँ कि मैं अपने आने वाली जनरेशन को ये बता पाऊँ, या मेरे बच्चे जब मेरे बारे में बात करें तो ये बोलें कि हमारी माँ वहां पहुंची. सिंस आई एम अ स्टोरी टेलर, तो मेरी माँ वहां पहुंची जहाँ किसी ने कभी इन द ईयर 2021-22 जहाँ किसी ने कभी लैपटॉप देखा नहीं था, और जहां बच्चों ने कभी माउस को हाथ नहीं लगाया था. इन दिस डे एंड एज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, जहां कभी बच्चों ने लैपटॉप नहीं देखा था, तो वो स्कूल्स में हम पहुंच पाए. इसके लिए आई एम ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर पूज्य गुरुदेव, आवर ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे वहां पहुंचने का मौका मिला. यू आस्क्ड अबाउट दिस जर्नी. मैं तो खुद इस बात को बिलीव नहीं किया कि जिस 17 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं, ये 17 स्कूल, वैसे तो हमारे पास 111 स्कूल हैं ऑल अलोंग द हिमालयन बेल्ट, बट आज मैं सिर्फ उन 17 स्कूल्स के बारे में बात करूंगी उत्तराखंड में, जो सुदूर, बहुत दूर हिमालयन बॉर्डर के ऊपर हैं. और इन स्कूल्स में आप देखोगे कि ये बच्चों के पास कंप्लीटली डिजिटल एजुकेशन नाम की कोई ऐसी चीज थी ही नहीं इन स्कूल्स के अंदर. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिसर्च किया कि ऐसे कौन से स्कूल्स हैं, और हम वहां पहुंचे और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने ये 17 स्कूल्स सिलेक्ट किए, जिसमें 10 स्कूल जो हैं वो अल्मोड़ा के हैं, और 7 स्कूल जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हैं. और ये स्कूल्स जो हैं एनीवेयर बिटवीन 1500 से 7000 मीटर अबव द सी लेवल की ऊंचाई पे ये स्कूल्स हैं. और जब मुझे ये स्कूल में पहुंचना होता है विद माय एज, आई थिंक आई हैव टू कीप एक और आधा घंटा, पौना घंटा मुझे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि वो जिस तरह पैदल चल के या ऊपर चढ़ाई चढ़ के उन स्कूल तक पहुंचना पड़ता है, वो अपने आप में एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब मैं उस स्कूल के अंदर पहुंच जाती हूँ. और मैं ये देखती हूँ कि 7000 फीट की ऊंचाई पे ये बच्चे उछलते कूदते हुए अपने स्कूल पहुंच जाते हैं. कई बार हमने अपने माँ बाप या दादा दादी को कहते हुए सुना कि हमने तो लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ाई की. तो ये कहानी ऑलमोस्ट वैसी ही है, उन स्कूलों की है जहाँ पे किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि वहां पे कंप्यूटर उन्होंने कभी देखा नहीं था. तो ये ऐसे स्कूल्स की बात हम कर रहे हैं. और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कम से कम नहीं तो रोज के 11 किलोमीटर चल के अपने स्कूल पहुंचते हैं. 11 किलोमीटर. अगर हम सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं शहरों में, तो हम ये 3 या 5 किलोमीटर तक चल के आते हैं. उनसे कहते हैं हमने 10,000 स्टेप्स ले लिए. पर यहाँ पे ये बच्चे 11 किलोमीटर सुबह चल के पहुंचते हैं अपने स्कूल, और वापस जाते वक्त भी इतना ही पैदल चल के जंगल के रास्तों से अपने घर वापस जाते हैं. अपने आप में आई थिंक इस बात को अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी हिस्सा है इस कहानी का, कि बच्चे एजुकेशन लेने के लिए इतनी दूर आते हैं उन स्कूल्स में. और अभी ये बात दर्शाती है कि अभी हमारे देश में एजुकेशन सेटअप करने की और कितनी जरूरत है, स्कूल सेटअप करने की और कितनी जरूरत है. ना ही सिर्फ स्कूल सेटअप करने की जरूरत है, स्कूल के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की भी बहुत बड़ी एक
जरूरत है। तो हमने किया क्या कि हमने ये 17 स्कूल ढूंढे और हर स्कूल मतलब टोटल हमने 85 लैपटॉप्स जो है इन स्कूल्स के अंदर डोनेट किए। और हमने 9 लोग ऐसे ढूंढे जो पास के गांवों से ही थे और दे हैड द प्रॉपर क्वालिफिकेशन टू गो एंड टीच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द स्कूल। फिर हमारे पास चैलेंज आया कि करिकुलम कैसा सेटअप किया जाए। क्योंकि यहाँ 6 से 12वीं क्लास तक के बच्चों को जब हम डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं तो इट इज अ जीरो नॉलेज फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास। किसी के पास भी कम या ज्यादा नहीं, दिस इज अ जीरो नॉलेज दैट वी आर स्टार्टिंग। तो एक जैसे ABCD पढ़ाना शुरू करते हैं तो 6th क्लास को भी ABCD वही पढ़ाई जा रही है और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ABCD ही पढ़ाई जा रही है ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो पहले साल में हमने ये पढ़ाना शुरू किया बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो 6th क्लास का बच्चा और 12वीं क्लास तक के बच्चे सेम चीज ही सीख रहे थे। तो पहले साल में हमने ये करना शुरू किया। और ये क्वालिफाइड जो ट्रेनर्स थे इनका मैं बहुत सपोर्ट था हमारे पास, क्योंकि एक बड़ा ही डिफरेंट तरह का चैलेंज आता है। 2 तरह की अप्रोचेस लगाए जाते हैं, एक होता है पुश और दूसरा होता है पुल, राइट। जब आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि डिजिटल एजुकेशन स्कूल्स में कैसा है और प्रिजन्स में हम काम कर रहे हैं तो ये कैसा है, स्कूल में तो आपको पुश कर दिया जाता है, पर जब हम प्रिजन्स में काम करते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमें पुल भी करना पड़ता है। तो दोनों तरह की अप्रोच हमें लगानी पड़ती है, एक तो पुश किया जा रहा है और दूसरा पुल। जब तक वो पुल नहीं रहेगी तब तक वो बच्चे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इस बात को हम सब लोग समझते हैं, चाहे शहरी हो या गांव के हो। तो हमें पुल अप्रोच भी उनके साथ लगाना है और इसके लिए हमें अपने ट्रेनर्स को तैयार करें कि क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में, दे आर गोइंग एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इनटू द स्कूल। तो आपको स्कूल की पूरी कोऑपरेशन चाहिए, आपको बच्चों की पूरी कोऑपरेशन वहां पे चाहिए। इट इज नॉट अ 0 पीरियड सब्जेक्ट। इसको पहले कंसिडर किया जा रहा है कि एक 0 पीरियड सब्जेक्ट हो, तो उसको हमें एक इम्पोर्टेंस उसकी देनी है, क्योंकि दिस इज द डे एंड एज ऑफ डिजिटाइजेशन। और इसमें अगर इस बात की इम्पोर्टेंस को हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो कहीं पे हम पीछे रह जाएंगे। तो पूरे फुल फोर्स के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ, कभी हमने इतना सा भी अपनी मोटिवेशन को नीचे नहीं आने दिया और हमने पहले साल में ये काम किया। दूसरे साल में फिर हम लोगों ने सेकेंड ईयर में हमने थोड़ा सब्जेक्ट्स को वो किया, क्योंकि हम बेसलाइन और एंडलाइन स्टडी करते हैं हर क्वार्टर में इन बच्चों के साथ। तो एक 4 क्वार्टर्स में पहले हम बेसलाइन देखते हैं कि जो हम करिकुलम उनके पास ले जा रहे हैं उसकी कितनी सब्जेक्ट समझ उनके पास है ऑलरेडी। तो उसके लिए एक बेसलाइन असेसमेंट होता है और फिर उसके बाद जब उस क्वार्टर के बाद उनका कंप्लीट होता है दैट करिकुलम थ्रू एंडलाइन स्टडी और डिफरेंट मंथली जो उनके टेस्ट होते हैं उसके थ्रू हम उनके असेसमेंट करते हैं कि उनको कितना समझ में आ गया। और बड़ी खुशी की बात है कि मोर देन 57% जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इन स्कूल्स में वो गर्ल स्टूडेंट्स हैं। और इस सब्जेक्ट की वजह से नेक्स्ट ईयर हमने देखा कि अबाउट 4.5% इंक्रीज हुआ एडमिशन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, बिकॉज यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन आया इन स्कूल्स के अंदर। नहीं तो पीपल वर जस्ट गोइंग फॉर द अदर स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, जहाँ पे उनको मिल जाए। तो होप थोड़ा है, पर आई थिंक इट इज अ वेरी बिग स्टेप। और 4.5% इंक्रीज होना गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन के लिए, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सुनीता, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि मेरे टाइम पर लाइक इट्स बीन सम इयर्स, कंप्यूटर की वजह से हम स्कूल छोड़ते थे बच्चे। यू नो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की वजह से, उस सब्जेक्ट की वजह से एडमिशंस बढ़ रहे हैं। सो दैट मीन्स समथिंग इज बीइंग डन राइट, नॉट जस्ट बीइंग डन बट बीइंग डन राइट। सो अंजू जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस फेस करते हैं आप, नॉट इवन इन स्कूल्स बट ऑल्सो इन प्रिजन्स? आई एम श्योर वहाँ पर चैलेंजेस थोड़े और बढ़ जाते होंगे। दोनों ही जगह के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है सुनीता, क्योंकि जब हम प्रिजन्स में काम करते हैं
तो वहाँ जो आते हैं वो थोड़ा सा समटाइम्स पीपल रजिस्टर कि चलो अभी कुछ नहीं है करने के लिए, तो हम डिजिटल एजुकेशन ले लेते हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं। और अनएक्सपेक्टेडली किसी की बेल हो गई तो वो बीच में से छोड़ के कोर्स चले जाते हैं। तो ये है, कुछ लोग जो इंटरेस्टेड है उनकी बेल हो जाती है, वो कहते हैं ओहो हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ और हमें जाना है। तो दोनों तरह की चीजें वहां पे होती है। वो रहना वो मतलब हम चाह के भी उनको नहीं रोक सकते अंदर प्रिजन के, क्योंकि उनकी बेल हो गई और वो जाना चाह रहे हैं। और कुछ लोग यूं ही बिना बताए भी वहां से चले जाते हैं। और जेल का प्रिजन का जो वो है वो बहुत टाइमिंग जो है हमें हर चीज का मैच करना पड़ता है। कई बार जब उनको क्लास के लिए आना होता है तो उनको होता है कि अगर मैं क्लास के लिए गई तो मेरे को जो अभी चाय मिलने वाली है वो मेरी छूट जाएगी, या फिर मेरे को बोला है कि सब्जी कलेक्ट कर लो आके तो वो मेरा छूट जाएगा। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है। तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो इस बात का उनको ख्याल बहुत रखना पड़ता है कि वो पहले समय से पहले पहुंचे प्रिजन में, क्योंकि उनको कई बार उनके बैरक्स से लेके आना पड़ता है, और जिन्होंने जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको सबको कलेक्ट करके क्लास में लाना पड़ता है, अनाउंसमेंट्स करा के उनको क्लास तक लाना पड़ता है कि क्लास शुरू होने वाली है, आप पहुंचिए। तो उसके बाद जब पहुंचते हैं तो उनको कंफर्ट करना पड़ता है कि आपको आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है चाय का या सब्जी का या खाने का वो मिस नहीं होगा। तो आप लोग बैठिए, शांत से बैठिए। तो ये एक डिफरेंट तरह का डायनेमिक्स प्रिजन के अंदर चलता है। उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, मुझे लगता है कि मुझे एक बार क्रॉनिकल करना चाहिए ये सारी कहानियां, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से वहाँ लोग आते हैं। और कई लोग बैठ के सीखते हैं, और कई बार मैंने अपनी खुद की टीम के साथ ये कहानियां शेयर भी करी हैं कि कैसे कुछ लोगों की जिंदगी बदली और कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल है इन क्राइम की दुनिया में ही अपने, और वो उनको वहां से मोटिवेट करके बाहर की ओर खींचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसमें आई थिंक हमारा जो हम एक प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम वहां अंदर कराते हैं बंदियों को, जिसके अंदर हम उनको योगा, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया और दूसरे लाइफ स्किल्स के बारे में उनसे बात करते हैं। चाहे वो प्रोग्राम 7 दिन चलता है, जिसका रोज का 1 घंटा ही उन लोगों निकाल पाते हैं प्रिजन के अंदर बिकॉज ऑफ द अदर टाइम शेड्यूल्स। बट उस प्रोग्राम की वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो हैं मैंने देखी हैं, उनका मन परिवर्तन हुआ है, उनका मन और शांत हुआ है, और उनके जीवन को वापस अपनी पटरी पर लाने के लिए दूसरी तरह से अपनी जिंदगी को जी पाने के लिए उनके अंदर जो एक लालसा उत्पन्न होती है वो इस प्रोग्राम के थ्रू होती है। तो अलोंग साइड द डिजिटल लिटरेसी और साइबर सेफ्टी प्रोग्राम जो हमें कराते हैं, तो उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर भी जब तक वो काम नहीं होता है तब तक ये अधूरा रह जाता है। इसीलिए पिछले साल में हमने करीब 54 हमने प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम्स 5 प्रिजन में करवाए हैं, जिसमें क्लोज टू 3000 पीपल, 3000 बेनिफिशरीज हैव डन द प्रोग्राम विद अस। जी सुनीता। ग्रेट। सो अंजू जी, फॉर नाउ जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो आपकी कहानियां बहुत सी, जैसे आपने बोला, सुनना चाहेंगे, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट लुकिंग एट द पॉसिटी ऑफ टाइम, माय वन लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ इज कि डिजिटल लिटरेसी में कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज अभी क्या चल रहे हैं? हाँ, तो इस साल जो हम लोग सोच रहे हैं नई NEP जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आई थिंक ये सबसे ज्यादा डिस्कस्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले क्या होता था, थ्रू सर्कुलर्स ही आपको बताया जाता था स्कूल्स में कि अब आप ये कीजिए, अब आप ये कीजिए, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आते थे। पर ये जो NEP है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनली डिस्कस, हर एक छोटा एस्पेक्ट उसका डिस्कस किया गया है एज पर एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन इज कंसर्न। और एक उसका स्क्वायर फ्रेमवर्क है विच इज स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क। तो उसके ऊपर जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं in the school, whether it is management or it is the curriculum or it is the students or it is the teachers or whoever is the part of it, तो हर एक के लिए वहां पे एक
फ्रेमवर्क बनाया गया है क्वालिटी असेसमेंट करने का, और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। सो फॉर नाउ मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि इसमें स्किल एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया है एट द स्कूल लेवल। तो अपने एरिया के वहाँ पे जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगर वो स्किल स्कूल्स के अंदर बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को अगर आप एग्रीकल्चर के बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सिखाएं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कि फार्मिंग की तरफ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका फिर से जुड़ाव होगा अपनी जमीन के साथ, ऐसा मेरा मानना है। और बिफोर वी कंक्लूड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम हम इन 17 स्कूल्स में कर रहे हैं, इन ये बच्चे जो है 96% ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम दीज स्कूल्स आर फर्स्ट टाइम कंप्यूटर एजुकेशन लर्नर्स। That's wonderful to know. Wonderful to know. Great. Thank you so much, Anjuji, for these inspiring stories. I'll come back again. Come back to you again. Jazz, Sushmita, my request would be to please bring all the panelists to the spotlight. Now the stage is open for our audience. You may ask your questions one by one. My request would be to maybe put it in chat and be very, very brief and crisp, so that, you know, we can also take care of the time. So, who would like to ask the question first? You may please raise your hand if possible, if anybody wants to ask a question. So, there is a question. Okay, Hitesh ji wants to ask a question. Hitesh ji, please go ahead, and I would request again to please be brief. Hello, everyone. It's a very beautiful platform where we are discussing how we have to save Himalayas, what all we can do for the people living out there. बहुत अच्छा है ये सबका सुना, बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है। बट जो मेजर प्रॉब्लम हमें दिखती है हिमालय में या सारे रीजन में, वो ये है कि हम जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रही हैं, जिससे आपदाएं आ रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी शुड टेक सम मेजर्स अलोंग विद द गवर्नमेंट, ऑल द एनजीओज टुगेदर, कि हम लोगों को ये जरूर समझाएं कि प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्मफुल है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे भी देखा, अभी देहरादून उत्तराखंड में हम रहते हैं, कि लोग यहाँ लोकल हों चाहे बाहर से आ रहे हैं, वो ड्रिंक करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं सब वो फेंक देते हैं। तो इट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज अभी हमने पहले भी देखा देहरादून में बहुत बड़ी आपदा आई यहाँ पे, वी वेंट देयर, लोगों से मिले, हेल्प किया। बट इसको रोकना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि जब लोगों को पता होगा कि हमें अपना पर्यावरण और जानवरों के लिए कैसे हमने संरक्षण करना है, तो लोग अपने आप जागरूक होंगे। तो ये जो एक हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है हिमालय उन्नति मिशन, इसमें महिमा जी हैं, इशिता खन्ना जी हैं, एक मैम और भी रही जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो जब हम मिलके सब लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको हम रीच कर सकते हैं। बट फैक्टर अभी इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जैसे आगे जो फ्यूचर में आपदाएं अगर आ जाएं या आ सकती हैं, उसके लिए ऊपर हमने कैसे काम करना है। पूरे हिमालयन और पूरे इंडिया में इसके ऊपर काम हो रहा है, रेंज में उत्तराखंड में हम देख रहे हैं। तो आप लोग बस इस चीज के ऊपर हमें बताएं कि कैसे हम काम कर सकते हैं, और कैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट और एनिमल्स, कि अगर हम इनको कंफर्टेबल रखेंगे तो ह्यूमंस के लिए तो ऑलरेडी गॉड ने सब प्रोवाइड कर ही रखा है हमें। तो माय फोकस इज मोर ऑन दिस, सो आई वुड लाइक टू हैव सम इसके ऊपर नॉलेज आप लोगों से। Thank you, Hitesh ji. I would request my panelists who would, Mahima ji, would you like to address this? Yes. Please. Yeah, sure. Thank you, Hitesh ji, for this question. Yes, it is a priority, especially आजकल के जो environmental issues हो रहे हैं, तो उसमें तो ये सबसे ज़्यादा important factor है। हम सबसे ज़्यादा we try to involve schools ये चीज़ में, क्योंकि बच्चे जो future generation है सबसे ज़्यादा उनको जागृत करना है। And right from primary level, जो हम about 35 schools में हम अभी काम कर रहे हैं across लद्दाख में द्रास सेक्टर, बॉर्डर एरियाज में हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस सबसे मिनिमम है। एंड वहाँ जब अब टूरिज्म बढ़ने वाला है, वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, तो वहाँ अवेयरनेस क्रिएट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वी आर एनकरेजिंग आवर वॉलंटियर्स टू गो इनटू स्कूल्स, start giving talks on how do you use plastic, how do you become a responsible citizen, various issues. I will cut it short.
तो ये चीजें हम स्कूल्स में सबसे ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद देन नेक्स्ट वी आर गोइंग इज कम्युनिटीज में, तो जब वॉलंटियर्स वहां जाते हैं, वी टेल देम टू सिट विद द वुमेन, सिट विद द मेन एंड टॉक अबाउट कि आपके हर गांव में अगर प्रधान रिस्पॉन्सिबल हो जाए और वहां के लोग अपने अपने एरिया को ही साफ रखना शुरू करें, और एटलीस्ट ट्रेन द टूरिस्ट हु कम देयर कि हमारे गांव में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अतिथि हो, अतिथि देवो भव हम मानते हैं, मगर आप जैसे आए हमारे गांव को वैसे ही साफ सुथरा आप छोड़ के जाएं। तो ये हर गांव वाले की भी जिम्मेदारी है कि they protect their own villages. So we try to create awareness in these villages to become responsible citizens first and protect. So yeah, various initiatives are going on. Government और आपके organizations तो कर ही रहे हैं, but this is what I feel we can do. Thank you so much, Thank you so Purnima ji. much, I hope that Purnima ji. answers your question, Hitesh ji. Awareness indeed is the key. Mrs. and Mr. and Mrs. Gulati, I'll come to you. Before that, one question for Ishita ji. It has come from Rajan ji. Ishita ji is asking how to mainstream responsible tourism best practice. How to mainstream responsible tourism best practice. See, I think mainstreaming is, it's about, it's a combination of travelers as well as the travel community, like the business operators. To mainstream it, I feel everyone has to play a role in this. And I think the government also plays a huge role. Unka bhi bahut, there are certain policy levels which Sunita, you were also talking about earlier, what are some of the policy things that can be done, that recommendations can be given. So the only way to really mainstream responsible travel is, of course, getting the government on board, and they are talking a lot about it. Now Modi ji is talking a lot about it as well. So the only one of the things which happens with mainstreaming is there's a lot of greenwashing that happens as well. तो वो भी थोड़ी सी उसको भी देखना पड़ेगा कि how to prevent that, because suddenly जब eco tourism या responsible tourism buzzwords हो जाते हैं तो सारे everybody starts claiming कि they are doing responsible tourism या eco tourism. तो ये जरूरी है कि there has to be some way of identifying कि मतलब what are the practices and are they being followed or not. So I feel the government, travel operators, associations, all of these play a huge role in basically ensuring that these systems are followed and it becomes regular practice. कि अगर टूरिज्म हो तो ये चीजें होनी ही चाहिए, मतलब कहाँ पर मतलब आपका कूड़ा जा रहा है, कहाँ पर आप there is a lot of initiatives now also to have like refill sites, to prevent a lot of this waste from plastic water bottles. But those also need to be standardized, and which is where the government plays a huge role in it. Government has done in places, they have done here and there, but unka kitna acha maintenance ho raha hai, is it being operated, is it being cleaned properly, so there are a lot of these issues. So unfortunately, yeah, it should be like a combination of government along with the social sector and the travel businesses. If they get involved, then it can be mainstreamed. Thank you, Ishita. This point, I think we need to communicate to the government also so that everybody can sit on what platform and discuss this out. It's a very valid point. I would like to come to Mr. and Mrs. Gulati. They've raised their hand to ask a question. Please. ये जो प्रोग्राम चल रहा है डिजिटल लिटरेसी का, ये स्कूलों में चल रहा है. इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. पर इसमें आपने बताया ना ये अल्मोड़ा में हो रहा है, नैनीताल में हो रहा है, कि इज देयर एनी प्रोग्राम केप्ट फॉर गढ़वाल रीजन, क्योंकि गढ़वाल रीजन में अभी बहुत ही रिमोट विलेजेस हैं. तो ऐसी कोई स्कीम फ्यूचर में आने वाली हो तो अंजू भारी जी बताएं. जी हमारे पास ऑलरेडी स्कूल्स हैं। गुलाटी जी, सबसे पहले तो जय गुरुदेव, नमस्कार अलका जी। जी ऑलरेडी गढ़वाल रीजन के कुछ स्कूल्स के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 32 स्कूल्स उधर भी हैं। अच्छा, Thank you, Anju ji. Ishita ji, one question again for you from Rajan ji. There are research findings that homestays actually disturb privacy of women and children and bring unexpected issues such as children dropping off from school, etc. What do you have to say about it? See, in our the homestays, it's a thing that is out of choice. So people who want to start the homestays, they do. And so far in the 20 years that we've been working with villagers,
the homestays. We haven't had this kind of like a feedback from the homestay people saying that their privacy is getting, infringed upon. It also does require that there is adequate sensitization. So we do make it on our part, we sensitize the travelers that you're going and staying in somebody's house. There is a local guide with them who all the time is checking in on both sides. Both in terms of the visitor as well as the community. So far we haven't had this. It is a valid point. It can lead to issues related to women and children, but we haven't had this, and we have tried to put in checks and balances. We also have literature in each homestays as to do's and don'ts, as to what a traveler should not do, as well as both at the community level as well as to, because even for them sometimes they don't realize that a traveler expects privacy, so they'll just like without knocking go inside the room, so we've had to sensitize at both ends, as to what are some of the do's and don'ts when somebody's visiting you, or when somebody is, or you're visiting somebody's home. Mahima ji also, I think, wants to add. Yes. Yeah, I'll just add one point, Ishita. You're perfectly right in this, because हम भी बहुत सारे homestays के साथ deal करते हैं, and उसका positive effect is much more than the negative, because जो गाँवों में कभी कोई बाहर वाला आया ही नहीं था, अब because of unusual routes जो लोग travel करने लग गए हैं, and they don't mind staying in homestays क्योंकि वहाँ दूसरे कोई accommodation है ही नहीं, but हमको दोनों को sensitize करना पड़ता है, and उसकी वजह से ना the locals का awareness खुल गया है. जब बाहर के समझो एक ग्रुप आया, फैमिली आई, या कोई सीनियर सिटीजन कपल आ गया, तो उनके बाहर वालों के साथ इंटरेक्शन करने में यूथ की भी अवेयरनेस खुल गई है. दे काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कि अच्छा ये लोग ऐसे बाइक वाइक लेके ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, एक उनको भी एक अपना अपग्रेड करने का एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि हम भी थोड़ी अपनी लाइफ को बेटर करें, how other people are living. So because of this homestay culture जो develop हुआ है, there is a link, थोड़ा सा एक bridge बन रहा है between the urban and the rural. जो पहले लोग जाते ही नहीं थे, अब because sensitivity वहाँ बढ़ गई है, like Ishita said, उनकी training हो रही है, तो homestay people are giving better facilities, better interaction, better accommodation, थोड़ा तो even the tourist is comfortable, जो 10 साल पहले नहीं था. So I think there is a positive effect to this whole, mission. Yeah. So talking about homestays, one question has come from Deepak Sharma ji. How can homestays truly develop into community stays where the whole community grows economically and spiritually? So yeah. Can I take this? Please. Yeah, please, sure. So ये communities में ही हम काफी इसको लेके काम कर रहे हैं, where अगर एक गांव में, I'll give you खिरचू जैसे गांव में एक example दे रही हूँ, तो वहाँ अगर 25 homestay हैं, तो it is being run as a community work कि turn by turn booking मिलती है, ठीक है, the money goes into one account and everybody is given an equal share. So everybody, there is no competition. नहीं तो पहले होता था एक दूसरे को competition करने लगता है, उसका अच्छा नहीं है, बस स्टॉप पे पकड़ के अपने घर ले गए या उसकी बुराई कर दी. So to end that, if the money goes into a particular a community one account, and then it is distributed equally, so the whole community is growing. So if they are purchasing from a local handicraft store जो tourist आते हैं, so the money is going collectively to everybody in the end. So this is motivating people ki, come together and work towards progressing, the whole village instead of, the competition and pulling them back. तो हाँ, ये community को बहुत फर्क पड़ रहा है, because जो लोग आते हैं फिर automatically आप गांव को साफ रखने की कोशिश करते हो, ठीक है, वहाँ आप schools में better hygiene रखते हो क्योंकि volunteers जाएंगे वहाँ काम करने के लिए, तो they don't want negative remarks coming into their villages, क्योंकि अगर negative responses आ गए social media में, तो लोग वो गांव में जाएंगे नहीं. So this is going to impact all the 25 homestays. So they try to work together instead of pulling the other person down, कि भाई सब साथ में grow हो, and ये हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है. Okay. Yeah. Thank you, Mahima ji. One question has come from Monica ji, ki global warming is a threat to Himalayan cryosphere. How to sensitize local people to this and make them aware for disasters? Ishita ji, would you like to address this?
because you are working Spiti Valley, Yeah. yeah. See, I think the community is already aware of it, मतलब कि because they are having to deal with it on a daily basis. कि मतलब बर्फ नहीं पड़ रही है तो मतलब अब खेत का क्या होगा, so because we are totally dependent on snowfall in Spiti. अगर हमारी बर्फ नहीं पड़ी तो मतलब कि वहां पर पानी नहीं होगा खेतों के लिए next in the summer season. So people are already aware of it, they're actually dealing with it, like I said, on a day-to-day basis. Right. The point is how to address it, that is where what we've been trying to do is we've been trying to create systems or, where they can adapt to these impacts of climate change, Right. Thank you, Ishita Jai ji. Gurudev, Sunita ji. Can I address Monica ji's question? Because जैसे Hitesh- इनका क्वेश्चन है कि जिस तरह से Hitesh ji, I'm really sorry to interrupt you, but it will be great if you can send us in writing because it's already 6 o'clock. No, We it's a won't short have thing, much Vasant. time. What I have to tell कि Yeah, Art of please. Living का emergency response training all over India start हो गया है, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सब लोग जाके ट्रेनर्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे लाइव उनको डेमोन्स्ट्रेशन दी जा रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है, कौन सी एप्स हैं जिससे वो वेदर देख सकते हैं, तो बहुत काम हो रहा है कि ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है कि इन केस कल को कोई प्रॉब्लम अगर ऐसे आपदा आती है तो हाउ टू डील फर्दर. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you so much, Hitesh ji. That was a very enlightening input. I think we should all maybe get involved in this. Yeah. Now, since we are already, overshot the time, so I would like to invite our Chief Advisor and Trustee, retired Air Marshal Shri Vijay Pal Singh Rana ji, to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. Hello, namaskar to everyone. I don't think after such a wonderful session anybody would want to listen to me. And in any case, I think all the issues that were there have been addressed, whether it is related to the livelihood or to the environment, very, very well conducted. What is heartening is that almost all the people who had logged in for this webinar are still intact. So that shows that how interesting this has been. तो एक तो सभी जितने भी हमारी वुमेन चैंपियंस हैं आज के इस वेबिनार की, पहले तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई. ये बहुत ही अच्छा एक वेबिनार रहा. हम हमेशा अपने वेबिनार के थ्रू लिविंग एंड लाइवलीहुड चैलेंजेस जो हैं हमारे हिमालयन रीजन के, वी जस्ट वांटिंग टू एड्रेस दोज. And I think each one of you have been doing a wonderful, wonderful job, but yet there is so much to be done. And all of us, that's the whole idea of Himalaya Unnati Mission, to get everybody together, get the ideas across. So I would first of all place on record thanks to all the audiences who are there and who have been there all along with us. You are a big, big support. और आपके बिना ये वेबिनार हम करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा. So every time more and more people are joining us, and that's really, really wonderful, because more of you people join us, the more voices and we become a collective voice, and I think we can really, really do wonders. And next, of course, all three speakers, Ishita ji, Mahima ji, and Tara Pangte ji, आपने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, आपने अपने स्ट्रगल्स बताए, अपने अपने काम बताए. और it's really wonderful that you are doing such a wonderful job in these remote areas. ये जितने भी हमारे remote areas हैं, being a person from the services, I must say that this is the strategic interest. And keeping our culture intact there, keeping our environment intact there is one part. But it is also a strategic importance that we make sure that the people in these areas remain vigilant, they remain vibrant, and that is also one of the reasons why the Vibrant Village program has been launched. So directly and indirectly, you are doing a great job to the national security. So that I must place it on record. So wonderful. There are so many other people who are working, but this was specifically we wanted our women champions to be highlighted in this. Anju ji, like Sunita said, she is our motivation on this, is doing a wonderful job, and so are many others. Sunita, this is a wonderful conduct, I must say. You become a real
professionals, so to say, to conduct the webinar. And so very, very well conducted. And also I would like to thank our support team, Just, and everybody, and the entire HUM team who've been working in the background. There's so much of planning needs to be done, so much the complete how you want to make it, how you want to make it impactful. So the complete team, I must place it on record that you've been doing a wonderful job. और दो तीन चीजें मैं कहना चाहता था. There are some issues which came on the waste management. In fact, our webinar is supposed to be on the waste management, and there are a lot of our partners who are specifically doing a great job in the waste management this thing. So maybe sooner we will be having a specific webinar on waste management in Himalayas. That's a real big concern. We are wanting to say that leave no trace behind. That is what our mantra should be. For our all, whether you are doing on responsible tourism, whether you are doing for the homestays or anything to do, by all means take the tourists to these places. I think Rajanji also said that. But there are a lot of other issues which are associated with the tourism, and we must make sure that the waste management is taken care of, the environment is taken care of, and I think we will work on this part, that anything and everything, and we will take that opinion from all our partners, that what all that we can do collectively or individually in their respective geographies, so that there is no trace left behind by the tourists. And as far as I think Hiteshji also talked about, nicely that he brought about the disaster management part, integral part of all Himalayan regions. We have done a wonderful job during both Sikkim disaster and Himachal disaster in recent past. A lot of our volunteers, overnight we could get, and that was possible because of the kind of linkage that we established with our partners and with our volunteers. Last point I have is that somebody said, what do we take to the government in terms of policy and advocacy? And again, I'll request all our partners, we will give that communique in this regard, that please share with us, because whole idea of Himalaya Unnati Mission is to be a collective voice of every single individual and every single entity and organization who are working in the Himalayan ecosystem. So we would want to get, and so that as a collective voice from all of us, we can give the advice or our recommendation to the governments. Not that they don't know, but when it goes as a collective voice and a collective concern, then I think they would take note of it. So at the end, there's so much is being done, but there is so much we can do, and that we can do only when we are here together as a team. So once again, thank you very much to everybody, all the participants, all the speakers, and all the people who have put this webinar together. Thank you very much. Thank you very much, sir, for inspiring words. I would apologize to all whose question I could not address because of lack of time. I would request you to please mail your questions to us. It can be communicated to the speakers and the answers can be sent to you. Number two, thank you very much for your feedbacks in the chat box. I would also request you to please fill up the feedback form which will be mailed to you. Lastly, I think this would conclude our webinar. Until next time, stay inspired and continue to be champions of change. Thank you and goodbye. Thank you so much. God Thank bless. you, all of you. Jai Gurudev. Jai Gurudev.